shirkei la dajinge jongi kaskem uji sukun ublei final the crown una pen kre ante final the crown una pen kre ante yen skem kum ikon jon ublei wat la kenwan Yom bas ngau shirkei la dajinge jongi kaskem uji sukun ublei Bainam bakau ulapen kre ante Bainam bakau ulapen kre ante Jing hikai bape Kinwan man lagi po Jingek bangi don Ban pen senjo Ai bangin yang skem Kat kum gak tin ublei Jisu kwa yangi Wai pa iwei Jing hikai bape Kinwan man lagi po Jingek bangi don Ban pen senjo Ai bangin yang skem Kat kum gak tin ublei Jisu kwa yangi Wai pa iwei Yang skem Kum ikon jon ublei Wat la kenwan Yom bas ngau shirkei La dajinge jongi kaskem Uji sukun ublei Bainam bakrau Ulapen kre ante Bainam bakrau Ulapen kre ante Jing pen shoy kinwan Man kapor man kasni Ban pen baklano Jinge jongi Ei uban yang skem O ei uban yaine Ban shus no dan hau Lawan ki jing Jing pen choy kinwan Man kapor man kasni Ban pen baklano Jinge jongi Ei uban yang skem O ei uban yaine Ban shus no tan hau Lawan ki jinge Yang skem Kum kikon jon ublei Wat la kinwan Yom bas ngau shirkei La dajinge jongi kaskem Uji sukun ublei Bainam bakrau Ulapen kre ante Bainam bakrau Ulapen kre ante Try udang kli Napneng natron O ei ubayeng skem Hapdeng ki jing tula jong ka pertei Try udang kli Napneng natron O ei ubayeng skem Hapdeng ki jing tula jong ka pertei
kun jong u blei wat la kin wan yong ba xiao shir kai yes can ki kun jong u blei wat la kin wan yong ba xiao shir kai la na jing nge jong ni ka sken u ji su ko u blei mai rong ba crown u la pen kre han सभी को परमेश्वर की महान और पवित्र नाम में जय मसीह। और यहाँ पर इस समय जो भी देख रही इस सेवकाई को परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और धन्यवाद हो आप सभी का कि आप लोगों ने इस सेवकाई को पार्टिसिपेट किया। तो आइए इस समय हम हमारे जो आज के दिन है वो 10 ईयर सेलिब्रेशन के दिन है और इस 10 सालों में जितनी भी हमारी यूथों की जर्नी है उनमें परमेश्वर की हर एक दिन को परमेश्वर की आशीष को हमने प्राप्त किए। तो उन सारे यूथों को परमेश्वर ने आशीष किए जो इस समय यहाँ पर उपस्थित है और परमेश्वर ने आगे बढ़ाया है। तो उन सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देंगे और हम साथ ही साथ इस दिन को परमेश्वर को रखेंगे ताकि आज के इस दिन में परमेश्वर की आशीष हम पर बनाई रहे और परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त कर सके। और जितने भी हमारे यहाँ इस समय हमारी यूथ के बीच में जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आज उनके द्वारा उनके प्रार्थना के द्वारा हम यहाँ पर उपस्थित है और जितने भी युद्ध यहाँ एकत्रित हो पाए उनके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के आशीषों के द्वारा। तो आए इसमें हम उन सभी परमेश्वर के आशीषों को धन्यवाद देते हुए आज के इस दिन को आज के इस पवित्र दिन को परमेश्वर की इस सेवकाई को हम शुरू करने से पहले परमेश्वर के एक भजन से इस सेवकाई को आगे करेंगे। इस समय हम भजन नंबर 79 गाएंगे और इस भजन को लीड करेंगे हमारे वर्शिप टीम। और इस भजन के बाद हम हमारे ब्रदर मंगल राभा को अनुरोध करना चाहेंगे वह बाइबल प्रार्थना के द्वारा इस सेवकाई को आगे करें।
आप सबको जय मसीह। तो आया हमारे सैटरडे के यूथ सर्विस को आरंभ करने से पहले हम एक वचन देखेंगे परमेश्वर की पुस्तक से। द बुक ऑफ सैम चैप्टर 144 वर्स 1 till 11 हमें क्या कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। प्रेज बी टू द लॉर्ड माई रॉक, who trained my hands for war, my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge, who subdues people under me. O Lord, what is man that you care for him, the son of man that you think of him? Man is like a breath, his days are like fleeting shadows. Part your heavens, O Lord, and come down, touch the mountains so that they smoke. Send forth lightning and scatter the enemies. Shoot your arrows and roll them. Reach down your hands from on high. Deliver me and rescue me from the mighty waters, from the hand of foreigners, whose mouths are full of lies, whose right hand are deceitful. I will sing a new song to you, O Lord. On the 10-string lyre I will make music to you. To the one who gives victory to kings, who deliver his servant David from the deadly sword. Deliver me and rescue me from the hands of foreigners. आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता आपके महान नाम को इस समय प्रभु जी, हमें आप सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने ऐसे काबिल बनाया परमेश्वर पिता कि हम अपने यूथ सर्विस को प्रभु जी ऑनलाइन सेलिब्रेट कर सके, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिस तरह हमें समय मौका दिया गया है परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर और आशीष करता हूँ प्रभु जी। आशीष मांगता हूँ परमेश्वर आपके पवित्र नाम में परमेश्वर, जो नाम प्रभु जी हमें स्वर्ग से उतर के इस पृथ्वी में दिया गया है, उस नाम में विश्वास रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे इस यूथ को प्रभु, जिस तरह ये वचन ने कहा है परमेश्वर द बुक ऑफ सैम चैप्टर 144 प्रभु जी, इसी तरह प्रभु जी हर एक यूथ को बनाना बोल के प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें उनके आत्मा में प्रभु जी आप बात करना बोल के प्रार्थना करते प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रभु जी कार्य कर प्रभु जी, ट्रेन करे प्रभु जी उन्हें, ताकि वो अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु जी वो सॉल्व कर सके प्रभु जी, फाइट बैक कर सके प्रभु जी और विजय प्राप्त कर सके बोल के प्रार्थना करते परमेश्वर। और प्रार्थना करते प्रभु जी हर दिन हर रात परमेश्वर, हर एक कदम में प्रभु जी आप उनके साथ रह देना परमेश्वर, उन्हें कभी भटकने ना देना बोल के प्रार्थना करते प्रभु जी। जहाँ भी जितने भी लोग हैं परमेश्वर, जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, जिस तरह आज आपकी महिमा हो रही है प्रभु, हर एक को प्रभु जी आपके चरण में सौंप दे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी होंगे प्रभु जी, जहाँ कभी जो भी जिस तरह भी सेलिब्रेट करेंगे प्रभु जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन परमेश्वर, उन सभी को प्रभु जी आप आशीष करना बोल के प्रार्थना करते रहे प्रभु जी। जो सेलिब्रेट करना नहीं सक रहा है परमेश्वर, उनसे भी आशीष करना बोल के प्रार्थना करते रहे परमेश्वर, ताकि उनके जीवन से प्रभु जी आपके राज्य की महिमा हमेशा होते रहे प्रभु जी, कभी ना रुके बोल के प्रार्थना करते रहे प्रभु जी। ये मेरी विधि प्रार्थना है परमेश्वर, धन्यवाद देता प्रभु जी। और आने दिन आने समय प्रभु जी जितने भी सेवकाएं होंगे प्रभु जी जो अटकाए परमेश्वर, उन सभी को प्रभु जी पूरा करने के लिए प्रभु जी आप रास्ता खोल देना, द्वार खोल देना बोल के प्रार्थना करते प्रभु जी, ताकि हम आत्मा प्रभु जी एकजुट होकर प्रभु जी युद्ध आपकी महिमा जय जयकार गुणगान हमेशा कर सके प्रभु जी। हमारे जीवन से प्रभु जी आपके नाम की महिमा हमेशा होती रहे बोल के प्रार्थना करते परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ चिट्ठी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देते हैं हम हमारे ब्रदर मंगल को कि वह आए और इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा इस सेवकाई को आगे की हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए समय हम एक और भजन गाएंगे, भजन नंबर होंगे 106 और इस भजन के बाद हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। Yesu,
आगे और बढ़ते हैं, हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हमारी यूथों के लिए। आज हमारी यूथ के 10 साल होने को जा रहे हैं और परमेश्वर ने इस 10 साल की जर्नी में जितनी भी आशीष किए, जितने भी कार्य किए हमारे द्वारा, उन सारी आशीष को, इन सारे कार्यों को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे ताकि आन दिन आन समय भी परमेश्वर की आशीष इसी तरह हम पर बनाए रहे। और आन दिन आन समय जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उन सभी में हम एकजुट होकर परमेश्वर के रहे खड़ा हो सके। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे जितने भी यूथ है, जितने भी एक एक जन को परमेश्वर के चरणों में सौंपेंगे, उनके जीवन आत्माओं में, उनके पर्सनल लाइफ में हम परमेश्वर को चरण में सौंपेंगे ताकि उनके जीवन आत्मा में परमेश्वर कार्य करे, ताकि वह संसारिक काम काज क्यों ना करे लेकिन उसमें भी परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की कार्य को वह कर सके और प्राप्त कर सके। और हम प्रार्थना करेंगे जितने भी आज विश्व भर में मंडलियाँ है, जितने भी यूथ सेवकाई को कर रहे हैं, उन सभी यूथों के बीच में भी परमेश्वर की आशीष बनाए रहे, ताकि आन दिन आन समय इन सारे यूथों के द्वारा परमेश्वर की बड़े से बड़े कार्य और परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़े से खंभा बनकर वह मंडली में खड़ा हो सके। हम प्रार्थना करेंगे आज चर्च ऑफ गॉड के जितने भी यूथ है, जितने भी मंडल है, उन सभी में परमेश्वर की आशीष हो आन दिन आन समय, ताकि उन मंडली के द्वारा भी, उन यूथों के द्वारा भी परमेश्वर के बड़े से बड़े कार्य हो सके। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी ढेर सारी आशीष, आपकी प्रेम के लिए जो प्रभु आपने हम चित्र पापी को दिया। आज आपकी आशीष और आपकी प्रेम के द्वारा प्रभु हम यहाँ पर खड़े परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को प्रभु हम अपने मुंह पर प्रभु लेकर अपनी पवित्र नाम से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद के पारे प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी ढेर सारी आशीष और आपकी प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम चित्र पापी को दी। और आपकी आशीष और आपकी प्रेम के द्वारा प्रभु आज हम इस 10 साल को कंप्लीट कर पाए मेरे पिता, हमारे यूथ के द्वारा प्रभु। और हमारे जितने भी प्रभु यूथ से परमेश्वर पिता उन सभी के जीवन आत्मा में आशीष करने वाला पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमें सदैव एक खंबा की तरह परमेश्वर पिता बनाए रखा प्रभु अपनी मंडली के लिए परमेश्वर पिता। आपने हमें यूज किया परमेश्वर पिता, यूटिलाइज किया प्रभु हमें अपनी राज्य के लिए प्रभु। उन सारे आशीषों को प्रभु, उन सारे कार्य को प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु आन दिन आन समय हमारे मंडली के द्वारा परमेश्वर पिता, हमारे इन यूथों के द्वारा प्रभु आपके राज्य के बड़े से बड़े कार्य हो परमेश्वर पिता हमारी मंडली के द्वारा, ताकि आन दिन आन समय आपकी राज्य के कार्य और एकजुट होकर परमेश्वर पिता हम आपके राज्य के लिए सदैव खड़ा हो सके परमेश्वर पिता। हमें इस लायक बनाए प्रभु, यही मेरी मांग विनती करते हुए आज जितनी भी हमारे चर्च ऑफ गॉड मंडली है परमेश्वर पिता, आज जितने भी सारा विषय पर में यूथ संडे को प्रभु मनाया जा रहा है प्रभु, मैं उन सभी जनों को प्रभु आपके चरण में सौंपते मेरे पिता। आन दिन आन समय इन यूथों के द्वारा परमेश्वर पिता उनके जीवन आत्मा के द्वारा प्रभु आपके राज्य के बड़े से बड़े कार्य और वह सदैव प्रभु आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता एक खंभा बनकर परमेश्वर पिता आपके राज्य के लिए खड़ा हो सके प्रभु, यही मेरी मांग विनती करते हुए सभी की जीवन आत्मा को, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर पिता, उनकी पर्सनल लाइफ को प्रभु आपके नाम में रखते मेरे पिता, ताकि उनके काम काजों में परमेश्वर पिता, उनके पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो, ताकि वह संसारिक काम पढ़ाई लिखाई की न लेकिन प्रभु उसमें भी परमेश्वर पिता आपकी आशीष और आपकी एक गवाही बनकर परमेश्वर पिता हम यूथ खड़ा हो सके प्रभु, हमें इस लायक बनाए परमेश्वर पिता, यही मेरी मांग विनती करते हुए हर एक यूथ को परमेश्वर पिता, हर एक मंडली को प्रभु आपके पवित्र नाम में रखते हुए मांगते में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के महान पवित्र नाम में आमीन। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे शिलोंग सिटी के लिए। आज जितनी भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वह आप सभी को भी पता है, तो हम प्रार्थना करेंगे हमारी सिटी के लिए, ताकि परमेश्वर उन सभी जनों को आशीष करे, हर एक जनों को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य शक्ति से भरे, ताकि आन दिन आन समय ये जितनी भी सिचुएशन है उन सभी को परमेश्वर आशीष कर सके। और इस जितने भी मंडलियाँ बन पड़ी आज इस पैंडेमिक के द्वारा परमेश्वर उस मंडलियों में भी आशीष करे, ताकि आन दिन आन समय वह मंडली खुले और परमेश्वर के राज्य के कार्य जोर तोर से हो। हम प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ हर एक बीमार रोगी के लिए, आज जितने भी हमारे घर परिवार के बीच में, हमारे आसपास पड़ोस के बीच में, हमारे मंडलियों के बीच में और सारा विश्व भर में जितने भी परमेश्वर के पवित्र जन है जो बीमार रोगी में परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उन सभी को परमेश्वर आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बीमारी को चंगाई दी, मृत्यु को जीवित किया, अंधों को आंखें दी। परमेश्वर की उस वचन को धन्यवाद देते हुए, उस वचन को सत्य मानते हुए हम प्रार्थना करेंगे उन सारे बीमार रोगी के लिए, उन सारे कोविड पेशेंट के लिए जो आज जो भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष करे और वह परमेश्वर के पवित्र नाम में चंगाई पाए और आन दिन आन समय वह परमेश्वर की एक गवाही बनकर, एक टेस्टिमनी बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो सके। आए समय हम प्रार्थना कर देंगे हमारे शिलोंग के लिए और हमारे जितने भी घर परिवार के बीच में, हमारे आसपास के पड़ोस में और हमारे मंडलियों के बीच में, सारा विश्व भर में जितने भी बीमारों में पड़े हुए उन सभी जन को आइए इस समय हम परमेश्वर के चरण में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद उस परमेश्वर पिता आपकी ढेर सारी आशीष और आपकी प्रेम के लिए जो प्रभु आपने हम चित्र पापी को दे प्रभु। इस समय मैं भी फिर से आपके पवित्र नाम को धन्यवाद कहती हूँ प्रभु, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी परमेश्वर पिता हमारे शिलोंग सिटी में परमेश्वर पिता जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे प्रभु, जितने भी सिचुएशन को प्रभु आप जानते हो परमेश्वर पिता, और हमें आशीष करने वाले, हमें ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य शक्ति देने वाले पिता परमेश्वर प्रभु। और उसी विश्वास के साथ मैं विनती प्रार्थना कहती हूँ प्रभु हमारे जीवन आत्मा में प्रभु आशीष करे, हमारी शिलोंग सिटी में परमेश्वर पिता आपकी अनुग्रह आपकी प्रेम बरसाए रखे परमेश्वर पिता। और साथ ही साथ जितने भी विश्व भर में परमेश्वर पिता आपके पवित्र जन है वह सभी भी परमेश्वर पिता आपकी आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु, यही मेरी मांग विनती करते प्रभु। जितने भी आज इस पैंडेमिक के द्वारा परमेश्वर पिता जितने भी परमेश्वर पिता जन आपके पवित्र नाम है प्रभु
सेवकाई नहीं कर पा रहे मेरे पिता, मैं उन सभी जनों को भी आपके चरण में सौंपते मेरे पिता, उन सभी की जीवनात्मा में परमेश्वर पिता आपकी पवित्र वचन यूं ही परमेश्वर पिता फैले रहे परमेश्वर पिता, ताकि वह भी आपकी आशीष, आपके प्रेम को और आपके अनुग्रह को प्रभु प्राप्त कर सके प्रभु यीशु पिता। यही मेरी मांग विनती करते हुए मैं विनती प्राण करते हुए इस समय हर एक बीमार रोगी के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी वचन कहता है परमेश्वर पिता आपने बीमारी को चंगाई दी प्रभु, मृत्यु को जीवित की, अंधों को आंखें दी परमेश्वर पिता, आपके उस वचन को विश्वास करते हुए प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रभु मैं विनती प्राण करते हुए परमेश्वर पिता हमारे घर परिवार के बीच में, हमारी मंडलियों में और सारा विश्व भर में आज जितनी भी बीमार रोगी में पड़े हो प्रभु, इस महामारी से जुझे हुए हर एक उस पेशेंट को प्रभु आपके पवित्र नाम में रखते मेरे पिता, आशीष करे कार्य कर प्रभु, अपने पवित्र नाम से चंगाई दे प्रभु, ताकि वह चंगाई प्राप्त करे प्रभु आपके पवित्र नाम में, और वह परमेश्वर पिता एक गवाही बनकर, एक चिट्ठी बनकर परमेश्वर पिता आपके राज्य के लिए खड़ा हो सके प्रभु। यही मेरी मांग विनती करते हुए हर एक जन को प्रभु, हर एक आपके उन पवित्र नाम को परमेश्वर पिता आपके चरण में सौंपते हुए हरेक प्रभु आपके पवित्र जनों को प्रभु के नाम में रखते हुए, हमारी इस शिलोंग सिटी को प्रभु आपके चरण में सौंपते हुए, हमारे घर परिवार के हरेक जनों को प्रभु, यहाँ पर जितने भी उपस्थित है परमेश्वर पिता उन सभी को प्रभु के नाम में रखते हुए मांगते मेरे उद्धार कृतज्ञता यीशु क्रिस्त के महान पवित्र नाम में आमीन। देखते हैं सारी प्रार्थना और आशीषों के लिए। तो आइए समय हम स्पेशल नंबर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेशल नंबर देंगे हमारे दर्शन लंग एंड ग्रुप, और सेकंड होंगे संगीता एंड राहुल नर्सरी। अपने पापों को तूने दी, ये माफी मुझको, चल रहा सुनी राहों पे तू ही है, मेरा केवल राही। आना है अपने पापों को तूने दी, है माफी मुझको, चल रहा सुनी राहों पे तू ही है, मेरा केवल राही। चलो अब क्या फिक्र है, चलो तू मेरे संग है, तू मेरे साथी। यीशु था मैं अधूरा, तुझ बिना पूरा, तू मेरा साथी। यीशु गाऊंगा मैं। गंदा यीशुआ, करूँ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तो करूँ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद
से भी गहरा तुझ में डूबो यही ये ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम की लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। पहाड़ों से ऊंचा, समंदर से भी गहरा तुझ में डूबो यही ये ख्वाहिश मेरी। पहाड़ों से ऊंचा, समंदर से भी गहरा तुझ में डूबो यही ये ख्वाहिश मेरी। हे यशोदाता मेरे खुदा, धन्यवाद आप सारे स्पेशल नंबर के लिए। तो आए इस समय हो चुका है परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के। और आज के इस वचन को देने वाले हमारे बीच में हैं हमारे ब्रदर विशाल सुनार। उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत आशीष और कार्य की है। आज उनके द्वारा हमारे यूथ खड़े हैं। उन्होंने हमें हर एक वचन से लेकर वचन में हर एक चीज़ों में हमें लीड किए हैं। और परमेश्वर उनकी जीवन आत्मा में आशीष करें। और आज उनके द्वारा सारे यूथ के एल्डर्स के द्वारा हम यहाँ पर एकत्रित हो पाए। परमेश्वर इन सभी की जीवन आत्मा में आशीष करे। और ब्रदर विशाल परमेश्वर आपको भी आशीष करे। तो आए समय हम उनके द्वारा परमेश्वर के पवित्र वचन सुनेंगे और साथ ही साथ हम उनके द्वारा एक स्पेशल नंबर भी हमें सुनने को मिलेंगे। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है। हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है। हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। तुझ में मेरी सांसें, रचना तू है मेरा। कभी ना अकेला है तू, आँखों का तारा तू मेरा प्यारा। सीने से रखता तुझे, तुझ में मेरी सांसें, रचना तू है मेरा। कभी ना अकेला है तू, आँखों का तारा तू मेरा प्यारा। सीने से रखता तुझे, हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है। हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और आज के दिन में मैं आपसे बहुत ही
हमारे जीवन में, स्पेशली हम सभी यूथ के जीवन में, वो है प्रार्थना। तो आप सोचते हैं कि प्रार्थना कैसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्या है। सबसे पहले प्रार्थना वो है जो हम बात करते हैं परमेश्वर से, जो एक कम्युनिकेशन होता है हम और परमेश्वर के बीच में, वो है प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना नहीं करते विश्वासियों, तो हमारा जो एक फेलोशिप है प्रभु यीशु के साथ वो कम हो जाता है, जो संगति है वो कम हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम आएंगे संडे को सेवा को, हम प्रार्थना करते हैं, सबके बीच में हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या आप व्यक्तिगत आप बैठते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम आइए खुद को देखें, हम किसी और को ना देखें, लेकिन हम लोग खुद को देखें। आइए हम जानेंगे प्रभु क्या चाहता है, आप किस तरह से प्रार्थना करें। हाँ, आप सभी के साथ तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप गुप्त में प्रार्थना करें। क्यों? सबसे पहले कि आपका जो सही मोटिव होगा आपका जीवन में, एक राइट मोटिव होगा। हम लोग ये देख सकते हैं मैथ्यू का, मैं पढ़ने चाहता हूँ मैथ्यू का चैप्टर 6 वर्स 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड व्हेन यू प्रे यू मस्ट नॉट बी लाइक द hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by men. Truly I say to you that they have their reward. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम सबके सामने ही प्रार्थना करना सिर्फ हैबिट होगा, तो क्या होगा कि वो दिखावटी में आ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी और को दिखाने के लिए हम लोग प्रार्थना ना करें, लेकिन परमेश्वर को बात करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का मोटिव जो होगा वो सही होता है, इसे परमेश्वर को हम देखेंगे। सेकंड क्या है कि हम लोग का जो रिश्ता है पिता का साथ वो सही होता है। ये भी हम लोग देख सकते हैं लूका के अध्याय 11, लूका के अध्याय 11 वचन 11 से लेकर 13 तक हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का वचन। What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें क्या कुछ नहीं देगा। अगर हमारा रिश्ता और संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तो परमेश्वर से हम जो मांगेंगे परमेश्वर देगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जो हमारा विश्वास है परमेश्वर में वो और मजबूत होते जाता है। एक कहावत है जो कहता है कि आप जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे आप उस तरह का बनते ही जाएंगे। तो अगर हम प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएंगे तो हम उस तरह का बनते जाएंगे जैसा हमारा परमेश्वर है। जैसा हमारा परमेश्वर सिद्धता की ओर है, हम भी उस ओर में जाएंगे अगर हम लोग प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना सिर्फ चर्च में आके प्रार्थना नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत जो होता है प्रार्थना ये भी बहुत ही आवश्यकता। आप कहेंगे मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम है, मेरे पास समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो परमेश्वर के पास भी समय नहीं होगा आपके लिए। तो आप ये हमेशा याद कीजिए। और हम लोग देखते हैं जो प्रभु यीशु ने कहा अपने जीवन में प्रार्थना के विषय में, उन्होंने कहा है वॉच एंड प्रे ऑलवेज, जागो और प्रार्थना करते रहो। क्यों परमेश्वर ने कहा है? क्योंकि परमेश्वर को पता है, प्रभु यीशु को पता है कि हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षा आने वाली है, बहुत सी टेम्पटेशंस आने वाली है। आप कहेंगे हे प्रभु मेरे जीवन में बहुत ही परीक्षा हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं लड़ने के लिए। तो आप किस तरह से आप लड़ पाएंगे? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जैसा कि वचन कहता है। जो 2 नंबर पॉइंट है वो कहता है कि आप ज़्यादा प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में कम गिरोगे। ये वचन है आपका मैथ्यू 26 में, ये भी पढ़ने चाहता हूँ। मैथ्यू का चैप्टर 26 वर्स 41। मैथ्यू का चैप्टर 26 वर्स 41 में
परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, वॉच एंड प्रे दैट यू माइट नॉट एंटर इनटू टेम्पटेशन, द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। आत्मा चाहता है लेकिन जो शरीर है वो कमजोर है। तो परमेश्वर कहता है कि हमारा शरीर कमजोर है लेकिन हमारा मजबूत, हम लोग को क्या मजबूत करना है? हमारा आत्मा को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम अगर ज़्यादा प्रार्थना में रहते हैं विश्वासी, तो हम क्या होते हैं कि जो परीक्षा में अगर गिरने वाले भी होते हैं, हम उससे लड़ पाएंगे। आप ना कहें कि मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा परीक्षा है, और आप कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत परीक्षा है, इसे हटा दो। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप ये कहें कि परीक्षा को हटा दो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इससे लड़ो। तो आप जब भी प्रार्थना करोगे तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे इस परीक्षा से लड़ने के लिए तू मुझे ताकत दे। आप जितना शैतान से भागोगे, शैतान उतना ही आपको पकाएगा। लेकिन आप अगर एक कदम भी आगे लोगे और आप शैतान से लड़ोगे तो शैतान भागने शुरू होगा। तो आइए हम अपने विश्वास को उस तरह से बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो हम यूथ हैं और जो हम जवान हैं, हमारे जीवन में क्या होता है कि बहुत सारा टेम्पटेशंस तो पूरा भरा हुआ होता है, जॉब का, पढ़ाई का, रिलेशनशिप का। लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी चीज़ को भी आप परमेश्वर में नहीं रखोगे तो कुछ भी सफल नहीं होगा। आपका जॉब, आपका पढ़ाई, आपका रिलेशनशिप, किसी चीज़ भी सफल नहीं होगा अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं रहते तो। और परमेश्वर ने बहुत सी आज्ञा दी है प्रार्थना के विषय में। तो हम लोगों ने आज जाना कि हम कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सिर्फ चर्च में प्रार्थना नहीं, परंतु सीक्रेट अपने गुप्त जगह में जाके प्रार्थना करना चाहिए। सेकेंडली, हमें परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, जागते रहो और प्रार्थना करो, हमेशा हमें ये याद करना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम कब प्रार्थना करें। अब ये भी है बाइबल में। आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, ये सच है, लेकिन मैं आपको बेस्ट टाइम बताना चाहता हूँ प्रार्थना के लिए, जो आपके लिए बहुत ही सही होगा। सबसे पहले आप सुबह भोर, सबसे सुबह उठ के आप प्रार्थना कीजिए। यहाँ ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मार्कुस के अध्याय 1 वचन 35 में। Mark chapter 1 verse 35. And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and there he prayed. सबसे भोर में, सबसे सुबह में दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर भोर के पाँव फटते, मतलब छोटा सा जब रोशनी आता है, तब दाऊद प्रार्थना करनी शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? And in the morning a great while before day he rose and went. सबसे सुबह में जाके उन्होंने प्रार्थना की। तो सुबह में क्या होता है विश्वासियों? सुबह को कोई भी नहीं होता है हमको डिस्टर्ब करने के लिए भी। ये सबसे बेस्ट समय है। और आप सबसे रात भर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लुका के 6 के बारे में आप पढ़ सकते हैं अपने घर में, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और जो खाने से पहले जो परमेश्वर ने हमें धन्यवाद करने सिखाया है हमेशा, क्योंकि जो भी परमेश्वर हमें देते हैं हम हमेशा धन्यवादी होने चाहिए अपने जीवन में। तो दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना के विषय में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि प्रार्थना ही जो मुझे बदला, और प्रार्थना ही है जो आपको भी बदलेगा। अगर आप प्रार्थना करोगे तो, विश्वास करोगे तो। देखिए, प्रार्थना में विश्वास भी आता है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपको वो, आप जो जितने भी आप प्रार्थना करते हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए। जब आप कुछ प्रार्थना करते हैं तो आप उसके बाद में आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको मिल गया। तो वो क्या होता है कि वो आपका विश्वास है। तो आप उस तरह से आप प्रार्थना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं प्रार्थना के विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता आज के दिन में। जो हम म्यूजिकल इवनिंग जो आज के दिन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही प्रार्थना लगा इसके लिए, बहुत ही समय लगा इसे बनाने के लिए। परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया। अगर हम कुछ करते हैं प्रभु के लिए,
जीवन में काम होगा, सबका होगा, सब बिजी होगा, लेकिन हमें ये याद करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम परमेश्वर को सबसे आगे रखेंगे तो दूसरी चीज़ ये हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट करते जाएगा। हम किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? संसार के काम को अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कभी प्रभु में हम लोग कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आने भी बहुत निकट है। अगर हम इस समय प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, अपने आप को तैयारी नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने कहा है थोड़ी सी पाप अगर होगा आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो आप ये याद करें मेरे प्यारे दोस्तों, यूथ स्पेशली, कि आप अपने जीवन से आप वो जो स्रोत है परमेश्वर का, आप उसे ना खोइए। अगर हम प्रार्थना में रहते हैं तो हम वो परीक्षा को लड़ पाएंगे। अभी कोविड का समय है, कोरोना वायरस का समय है, अगर हम खुद को तैयारी करेंगे, प्रार्थना करके अपने आप को मजबूत करेंगे, तो हम इसे जीत पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसे लड़ पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस प्यारे से वचन के लिए परमेश्वर हमें इसी तरह हमेशा प्रार्थना के जीवन जीना सिखाए और परमेश्वर की राज्य के लिए हम हमेशा आगे बढ़ सके। इसी प्रार्थना के द्वारा हम सभी प्रार्थना करें अपनी जीवन आत्मा के लिए। धन्यवाद हो हमारे ब्रदर विशाल सुनार को, परमेश्वर आपकी जीवन आत्मा में आशीष करे। और धन्यवाद हो हमारे जितने भी बाइबल प्रार्थना और स्पेशल नंबर के लिए। तो आज समय हम सेवकाई को अंत करेंगे और हम भजन नंबर गाएंगे 78 और इस भजन को लीड करेंगे हमारे यूथ और हम प्रार्थना करेंगे। इसी तरह हम हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ सके। इस समय हम भजन नंबर 78 गाएंगे। भजन के बाद हमारे वचन वक्ता हमारे ब्रदर विशाल सुनारी इस सेवकाई को अंत करेंगे प्रार्थना के द्वारा। तुमको लगे चिंता ये बहुत सारी, बाधाएं भी तुमको लगे बहुत भारी, दे दो सारे यीशु को वो शांति दे, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर सके वही, कर प्रार्थना, ना छोड़े प्रभु, कर प्रार्थना, बचाए प्रभु जी, कर प्रार्थना, जो जवाब देगा, चाहे चकोर तुम क्या ना हो, कर विश्वास की तेरे साथ है वो सदा, दे सके वो मुक्ति तुझको प्रभु प्यारा, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर सके वही, कर प्रार्थना, ना छोड़े प्रभु, कर प्रार्थना, बचाए प्रभु जी, कर प्रार्थना, वो जवाब देगा, कर धन्यवाद उसने आशीष दिया, भरोसा कर साथी दे जो साथ है, जो भी तुम मांगते हो देता तुम्हें, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर सके वही, कर प्रार्थना, ना छोड़े प्रभु, कर प्रार्थना, बचाए प्रभु जी, कर प्रार्थना, वो जवाब देगा। आइए हम अंत के लिए प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता कि तूने आशीष की हमें इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मेरे पिता। परमेश्वर तूने अनुग्रह की मेरे पिता, धन्यवाद हो तेरा परमेश्वर।
और हालेलुया परमेश्वर की तूने हमें स्वस्थ रखा परमेश्वर की हम सब ने भाग ले सके परमेश्वर इस म्यूजिकल इवनिंग में। धन्यवाद हो तेरा मेरा पिता परमेश्वर। और परमेश्वर हर युद्ध को आपके चरणों पे सौंपता हो परमेश्वर। और अंत में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता इस हमारे युद्ध के साथ और जितने तेरे लोग हैं उन सभी के साथ सदा सर्वदा यूं ही बने रहे।